और जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस समय प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। तो आपको बता दें कि आज 17वीं बैठक थी और इस पर कई अहम मसलों पर चर्चा हो रही थी। एंटी प्रॉफिटियरिंग एक्ट पर इस पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा लॉटरी के क्या रेट्स होंगे, इस पर भी चर्चा होनी थी। ई वे बिल को काउंसिल से मंजूरी मिल गई है। सरकारी लॉटरी पर 12% और प्राइवेट लॉटरी पर 28% की दर तय की गई है। और यानी कि लॉटरी पर 2 तरह की दरें तय की गई हैं। जीएसटी काउंसिल की अब अगली बैठक 30 जून को होगी। कुछ मसले और रह गए हैं। It was decided that there will be further deliberations which will continue on the e-way bills rules. And after consultations, once consensus is reached and we formulate one opinion, we will frame the rule. Till then, an alternate rule will operate because it can be done only under the rules, which will authorize the existing system of the states to continue. So till a consolidated rule with consensus is framed, the transient rule will allow the existing system in the states to continue. A few items. IGST on shipping vessels 5% with input credits. This was a pending issue. A very large part of today's meeting was occupied by a discussion on the taxes on lottery. The state of Kerala had a very strong view that lottery should be taxed at 28% of the face value. Some other states felt that a lesser tax would be better. Kerala's view was also persuaded by the fact that some states run lotteries directly themselves. There are 3 categories of states. Some have banned lotteries. Some operate lotteries themselves, which are state-run lotteries. And there is a third category, which is state-authorized lotteries, जिसमें नाम स्टेट का इस्तेमाल होता है, and it is operated by private parties. So there was several hours were spent on this one subject. So finally the consensus was reached, and this was a very contentious issue, I must say, but that's the strength of the GST Council, that we reached a consensus that the lotteries will be of 2 kinds, state-run lotteries and those which are run by private persons merely authorized by the states. So the state-run lotteries, which state governments directly run, will be taxed at 12% of the face value, and state-authorized lotteries will be run at 28%. Another important decision was what Goa and Rajasthan very strongly pushed, was a relook at the 28% tariff on hotels. They felt that the 5,000 rupee limit for a 28% is too less, and that restaurants in 5 stars being taxed at 28% will be too high. So after a lot of discussion, the 28% limit in hotels will start from 7,500, which means
that between 2,500 and 7,500, the rate will be 18%, and it will be 28% only beyond 7,500. Similarly, tax GST on the restaurants in these hotels will be at par with other air-conditioned restaurants, which is 18%. The negative list for composition is based on the fact that either health hazardous foods or some such products on which there is no input credit available. So a detailed list was discussed and it was decided to keep this list at the minimal. So only 3 products have been added in it. That is ice cream, pan masala and tobacco. Pan masala and tobacco because of health reasons, and ice cream because there is no input. Milk is not taxed, and that's the real input. The state of readiness of the IT network was also discussed at length. Now, if we take all the registrations which have been going on, if you take the current number of registrants in the old system, that is VAT, central excise, service tax, plus other taxes, the sum total of total number of registrants in the old system is 80.91 lakhs. Out of these, some will get excluded because VAT limits which were 5 lakhs and 10 lakhs in some states have become 20 lakhs. And there were a number of registrants who are common, who are registered for excise and also for VAT. अब उनका केवल एक registration होगा. फिर कुछ नए लोग भी इसमें आएंगे जो रेट्स हमने तय किए हैं. Registration has been going on fairly satisfactorily in the IT system, and as of today 65.6 lakhs, that is 81.1%, have already taken their provisional registration. The GSTN executives are here, they can explain to you the technicalities in detail. A number of companies and trades have been raising the issue of the lack of their own preparedness. Now, we don't have the luxury of time to defer the implementation of the GST. Everybody, we have been saying in advance that be ready, it will be implemented from 1st of July, and therefore the council decided categorically that it will be implemented from the 1st of July onwards. In order to, and the registrations will go on, they are, I think, again reopening on the 25th of June, and we hope that the new people who will come within the fold will rapidly register themselves. In any case, the registration process has been going on quite satisfactorily. When thousands and lakhs register, they don't make a complaint. When 5 people have a grievance, they go to the Twitter. That's been the experience. 81% have registered without any glitches. The preparedness will come in when they have to file their return. The return for the month of July will have to be filed
ordinarily by the 10th of August. So we are today on 18th. So even today there are 42 days to get ready before the return is filed. In any case, to obviate any grievance or any lack of preparedness, a slight relaxation of time for the first 2 months, that is return for the month of July and August, was discussed, and from September the strict adherence to the time will go on. Dr. Adia will give you the somewhat relaxation which has been given, which actually means that those who are not ready after relaxation will have more than 2.5 months to get ready. And if somebody still says he is not ready, then it is to his own detriment. Dr. Adia, after I conclude, will just give you the change dates. The official launch of the GST will take place on the midnight of 30th and 1st at a function which will be organized in Delhi. We will be soon giving you all the details of that program. To you. This is all I had to say. Yes, sir. शिपिंग वाला डॉक्टर आदिवाली I'll explain. जो शिपिंग वाली बात है वो ऐसा था कि we had put 5% IGST on any ship which is imported. Now the shippers were saying कि if we are buying a ship, then their output tax liability on the service tax is only 5%, and that also because the ships which are owned by Indian ship flag owners, they are also flying somewhere else in the world, so they are all moving around in the world. They don't have any output tax liability here. So how do we recover this? So we are actually giving them the facility. पहले हमने ये कहा था कि you can only recover, you can only take input tax credit in respect of services out of the service tax liability. Output tax liability on account of services, they can take input tax credit only for services. Now what we have said is कि even the ship, whatever 5% IGST paid on the ship, they can take input tax credit for the same when they are flying the ship in India and when they have output tax liability in India. So that is a facility that we are giving. The second issue is about the migration. No, not about the migration, about this return filing. Actually, we are supposed to strictly accept the return based on the invoice-wise detail in case of all B2B supplies. So the GSTR 1 has to be filed by 10th of every month. GSTR 2, which is purchase detail, will be auto-populated by computer, which is to be done by 15th of the next month, which computer will do. They have to simply accept it. And GSTR 3 will automatically be generated by computer based on GSTR 1 and 2. That is also auto-populated. So virtually there is only one return, GSTR 1. But there also, what we are saying is that for the first 2 months, instead of insisting on exact invoice to invoice data immediately, they will be filing a simple form in form number 3B. There is a new form, which is a small form. It is a slight modification of 3. 3 would be generated by computer, but 3B will be filed by SSE himself. So 3B, form number 3B will be filed for the month of July by 20th of August. And for the month of August, it will be filed by 20th of September. This form will be self-declaration in the form of saying that this is my output tax liability, this is my input tax credit according to my own accounts, and this is my total tax liability. And then he will declare his tax liability, pay that much of money so that the government does not lose income every month, because we need income every month, so we have to ensure that we get our income. Having said that, what we are saying is that we are not saying that they will not at all enter invoice-wise detail in GSTR 1 for the month of July and August. They will enter invoice-wise detail for July and August also, but we are giving a slightly relaxed time for that. So for the month of July, the invoice-wise detail can be, our system will open for filing invoice-wise detail from 15th of July.
And during that period, all the systems can be tested by all the GSPs also, by ERPs of various companies. They can have 15 days more to test that system. So from 15th of July, our system will open. And for the month of July, they can continue putting their invoice file detail, and they will have time up to 5th of September. But before 5th of September, all SSEs will have to give their invoice file detail in GSTR1. And those who are having B2C business, they will have to give their turnover detail in GSTR1 by 5th of September. So 9 months hai September. About, yeah, that is the time they get. Then for the month of August also, of course, as I told you, form number 3B will be filed separately. It is a summary form and he will pay tax accordingly. But August, for the month of August, the data of GSTR1 will have to be filed by 20th of September. So they'll get 10 more days there also. Normally they would have done it by 10th of September. They'll get 10 days more for the month of August also. So that is what they can do in the month of September. So based on both this GSTR1, which is filed in the month of for July and August, GSTR2 will be automatically generated and GSTR3 will also be automatically generated for them, for which separate dates are being given. So that is the stand table that we have now. So virtually they are getting some more time for preparing their systems, etc. And the first 2 months return will be based on their own assessment of taxation which they will do. Subsequently, return number 3, which is generated by the computer, will be compared with return 3B, which is self-filed by them, and if there is any difference in tax amount, it will be payable by the tax SSE. Okay? So that is the system that we have adopted for the first 2 months. Regarding the migration, I would like to request all the members of the public that they should not rush, because as it is, there is no difference between provisional ID number and the new GST number. The same isn't it? Provisional ID number will be the same final number. It is only that they need a certificate from us that all the details will be with you. But they exactly get 3 months time to do it. So even if suppose they have not done it, they don't need to really create a panic about it. They can take 30 days at least, you know. So when it opens on 25th, not everybody needs to immediately migrate. As long as they have got a provisional ID, they'll be able to continue their business and they'll be able to sort of file their return. So that is not a problem. For the new registrants, because there are a lot of businesses which are now being taxed, which were earlier not in tax. So those businesses have to register now. For them also, there is a period of 30 days available. So although the new registration will start from 25th, they need not rush again, and they need not say that by 1st of July I have to get the registration number. They can get 30 days to get a registration number from GSTIN. So that also one should keep in mind. Naveen Kumar or Prakash, would you like to add something? So you have covered most of the things. Okay. So any questions? सर इसमें ईवे बिल की जगह जो व्यवस्था भी लागू की गई, कब तक हम लोग उम्मीद करें कि ईवे बिल की व्यवस्था लागू? देखिए, एक बार जुलाई 1 को लागू हो जाए, क्योंकि अधिकतर स्टेट राज्यों का कहना था कि उन्होंने ईवेज की अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है और उनको लगता था कि उनकी चेकिंग से जो ईवे बिल की करते हैं, बहुमत में वो राज्य थे, तो उससे काफी इवेजन को चेक करने में सहायता मिलती है। कुछ राज्यों का कहना था कि अगर जीएसटी सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसकी शायद आवश्यकता कम हो जाए। तीसरा एक मत यह था कि शहर के भीतर इंट्रा सिटी इसकी आवश्यकता नहीं है, इंटर स्टेट में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इस पे विभिन्न मत थे लोगों के, तो इस पे और चर्चा की अभी जरूरत है। और काउंसिल में क्योंकि हम कंसेंसस से निर्णय लेते हैं, वो संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि एक बार लागू होने के बाद हम लोग मिलेंगे। अगली मीटिंग जो है हमारी, वो 30 तारीख को विज्ञान भवन में होगी, एक दिन पहले। उसी दिन लॉन्च होना रात को, तो लोगों को हम उस लॉन्च के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो उस दिन या उससे अगली मीटिंग में कभी न कभी तय करेंगे। सर, कई सारी डिमांड थी कि जो नॉन कंप्लायंस होता है उसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाए, उनके ऊपर कोई पेनल कार्रवाई न की जाए। सरकार ने इसके बारे में सोचेंगे? देखिए, ट्रांजिशन फेज में रिलैक्सेशन का प्रावधान है हमारे पास, लेकिन
हम ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी इसका इंप्लीमेंट हो सके वो हो। और हमने जो आज सहूलियत दी है कि अगस्त वाली के लिए आपके पास 2.5 महीने हैं, सितंबर वाली के लिए और 15 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये इसीलिए दी है कि लोगों का पहले 2 महीने में अभ्यास बन जाए और सिस्टम के ऊपर भी एकाएक ओवरलोडिंग ना हो। सर 15 तारीख को सीबीसी ने एक सर्कुलर जारी किया था रियल एस्टेट को लेकर खासतौर से आगाह करते हुए। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एनसीआर में कई बायर्स के पास लेटर पहुंच रहे हैं कि 30 जून से पहले जो है बकाया अमाउंट जमा करा दे, अन्यथा उनको 12% जो है सर्विस टैक्स देना होगा। इसको लेकर कुछ गंभीरता, क्योंकि कई जगह रेगुलेटेड नहीं है सर, वो गलत है। नहीं, वो गलत है, इसीलिए हमने क्लैरिटी दिया था प्रेस नोट के माध्यम से, और प्रेस नोट के आने से भी काफी जागरूकता आई है ग्राहकों में। बट फिर भी हमने हुपा हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी सेक्रेटरी को भी लिखा है चिट्ठी, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये बात हर स्टेट को पहुंचाए, हर स्टेट के रेरा के जो रेगुलेटर है उनको भी बताए, और उनके जो एसोसिएशन है उनके साथ हुपा के सेक्रेटरी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो मीटिंग करे और उनको समझाए। टेक्निकली ये जो इनपुट क्रेडिट मिलेगा रियल एस्टेट पे 1 जुलाई के बाद, और टैक्सेशन में से वो घटेगा, और उसमें जो कटौती आती है उसमें प्राइस रिडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी कटौती का सारा लाभ डेवलपर को जाए। दैट प्राइस रिडक्शन हैज टू बी पास टू द कस्टमर। सर, जो एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स आज आपने अप्रूव किए हैं, जो रियल एस्टेट के लिए जो कोई ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या ये रूल उनके ऊपर? देखिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग में हम लोगों ने रूल्स लागू किए हैं, स्वाभाविक रूप से लागू हो सकता है। मतलब हम इस पावर को ज्यादा डेटरेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिसको प्रयोग करने की आवश्यकता न पड़े। आई होप वी आर नॉट कंपेल्ड टू यूज इट। और इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जो स्क्रीन करेगी, उसके बाद एक एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी होगी जो इंडिविजुअल केसेस स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करेगी, उनको कंसिडर करेंगे। मेरा सवाल सर ये कि इंडिविजुअली अगर जो कंप्लेन करता है, जैसे रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या वहां पर स्टैंडिंग कमेटी उन कंप्लेन को उनका कॉग्निजेंस लेगी? और निश्चित रूप से सर, ये क्या उसमें जो एंटी प्रॉफिटिंग रूल है उसमें ये प्रावधान है कि अगर जितना डिक्रीज हुआ है उतना कम से कम डिक्रीज होना चाहिए सर? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसा रूल था कि अगर $1 का डिक्रीज हुआ है तो कम से कम दाम $1 गिरना चाहिए। देखिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या है एक्ट में, उसकी एग्जैक्ट शब्दावली परिभाषा आपको एक्ट के अंदर मिल जाती है। सर, प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर काफी सवाल चल रहे हैं, कब तक फैसला हो जाएगा कि नाम क्लियर कब तक हो जाएगा एनडीए की ओर से? क्योंकि आप बीजेपी के जो 3 कमेटी बनी थी उसके आप मेंबर हैं सर। आज विषय आया नहीं मीटिंग में। सर मैच में क्या लगता है क्या होगा? चलिए, now there are only 3 states left. Tamil Nadu has a meeting tomorrow. West Bengal has already passed a ordinance. Punjab, I hope, will clear it. Punjab has been actively participating. Then that only leaves J&K. Kerala is also doing it. So all states will be through by, I think, by the end of the coming week. तो जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक आज पूरी हुई दिल्ली में और कई अहम फैसले इसमें लिए गए। और खास बात यह है कि कारोबारियों का जो डर था कि 1 जुलाई से जब लागू होगा तो उसका कंप्लायंस बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाएगा, उसमें थोड़ी सी राहत दी गई है। अब 2 महीने की राहत मिली है कारोबारियों को इस सिस्टम से फेमिलियर होने के लिए, अपने को उसके साथ जोड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और आपको बता दें कि जी बिजनेस लगातार ये मुहिम चला रहा था छोटे कारोबारियों के लिए, खासकर जिनको काफ़ी उलझने थी इस पूरे सिस्टम को लेकर कि ये कैसे वर्क करेगा, वो कैसे अपने को जोड़ पाएंगे और कैसे रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये तमाम बातें थी जो उनको परेशान कर रही थी और इसीलिए जी बिजनेस लगातार ये मुहिम चला रहा था और सरकार से अपील कर रहा था कि छोटे कारोबारियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए वो इसको लागू करने की डेट से कम 6 महीने की राहत तो जरूर दें, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो और कोई जुर्माना उनको ना भरना पड़े। लेकिन सरकार ने 6 महीने तो नहीं, वित्त मंत्री ने अभी 2 महीने का टाइम दिया है और अगर उसमें 15 दिन और जोड़ दी जाए, जिस तरह से रिटर्न की बात उन्होंने की है कि सितंबर का रिटर्न आप 20 सितंबर तक भर सकते हैं, तो कुल मिला के करीब 2.5 महीने का वक्त
आपको मिलेगा इस सिस्टम से अपने को फेमिलियर करने के लिए। तो आज की बैठक और एमएसएमईज को खासकर होने वाला है। इसी पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस खास पेशकश में। वेद जैन साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट, रजनीश गोयनका, चेयरमैन एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम, और आशु डालमिया मेरे साथ हैं स्टूडियो में, जीएसटी कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत रजनीश गोयनका जी आपसे ही करेंगे। जिस राहत की बात हम लोग लगातार उठाते रहे हैं जी बिजनेस के माध्यम से, और सरकार से अपील करते रहे हैं कि कम से कम छोटे कारोबारियों का वो ध्यान रखें, क्योंकि वो अभी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ये नया सिस्टम है उनके लिए। एक तरफ मैनुअली सब काम होता था, अब सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होगा। उस चिंता को आपको लगता है कि एड्रेस किया है वित्त मंत्री ने, और जो 2 महीने की राहत उन्होंने दी है वो सफिशिएंट है? मैं देखिए, इस तरह से तो 6 महीने या 1 साल लेते रहेंगे। वित्त मंत्री ने जो ये 2 महीने की राहत और 15 दिन का रिटर्न के लिए दिया है, ये बहुत बड़ी राहत दी है। और इससे कारोबारियों को अब ये डेडलाइन जो 1 जुलाई की थी, उसके लिए ऑलरेडी काफी प्रिपेयर्डनेस हो चुकी थी। और अब ये जो 2 महीने मिलेंगे, उस तरह से उनको एक और मौका मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का। और ये बहुत बड़ी राहत दी गई है, और ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस काफी हो चुकी है। जितने छोटे, अब ये जो 75 लाख रुपए तक का जो कंपोजिट इन्होंने एग्जम्पशन दिया है, जिसमें एक कंपोजिट रिटर्न देके आप एक छोटे स्लैब में उनको छोड़ा है, तो मेरे हिसाब से 90% तो छोटे जो एमएसएमईज हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत उससे ऑलरेडी दी गई है। और अब जो बाकी बचे हैं उनको ये जो 2-2.5 महीने की राहत दी गई है, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और वो लोग प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अब जो वक्त मोदी गवर्नमेंट में जो रिजीम बना है, सब लोग टैक्स देना चाहते हैं, वो शांति से रहना चाहते हैं, कारोबार पे कंसंट्रेट करके बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो मौका दिया है, और जिस प्रकार से सरकार की नीयत बड़ी क्लियर है कि मौका दिया जाए ताकि लोग अपने आप को टैक्स नेट में इन्वॉल्व करें और उसको आगे आगे इम्प्लीमेंट करने में सुविधा हो, उसके लिए बहुत बड़ा ये एक कदम लिया है अरुण जेटली जी ने। और मेरा ख्याल है इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और अधिक से अधिक लोग इस नेट में आएंगे। जी, और जिस तरह से आंकड़ा दे रहे थे वित्त मंत्री की, अगर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो करीब 80.91 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और जो अपने को रजिस्टर करा चुके हैं जीएसटी में वो 65.6 लाख हैं, यानी कि 81.8% कारोबारियों ने अपने को रजिस्टर करा लिया है। कुछ ही संख्या बचती है जिनके लिए भी बहुत राहत दी है। वेद जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो एक कहावत है कि चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड। अगर 1 जुलाई नहीं 1 सितंबर की बात होती, तब भी जिन ग्लिचेस की बात लगातार की जाती रही है वो शायद उस समय भी होता। ऐसे में एसोचैम जैसी संस्थाएं ये बात उठाती हैं कि अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आपको लगता है कि अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है, जैसे कि अभी वित्त मंत्री ने भी कहा, और आप डेट अगर टालते जाएंगे तो शायद वो स्थिति ही नहीं आएगी? देखिए, मेरा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद सरकार के पास 16 सितंबर के बाद का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और जो आज जो डिस्कशन किए गए हैं, सरकार ने उसमें छूट दी है रिटर्न फाइलिंग की। और अब जिस तरह की तैयारी सरकार ने कर ली है और जिस तरह का माहौल बन गया है पिछले 1 महीने में, और जिस तरह से जीएसटी काउंसिल ने एक के बाद एक अपने रूल्स पास किए हैं, रेट नोटिफाई किए हैं, मैं ये नहीं समझता कि आज की डेट में सरकार के पास कोई ऑप्शन था 1 जुलाई की डेट को चेंज करने का। तो सरकार ने आज एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी है कि जो जुलाई महीने की रिटर्न थी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की, जो 10 अगस्त तक भरनी थी, उसको 25 दिन बढ़ा के उन्होंने 5 सितंबर कर दिया है। यानी कि पहले महीने की जो रिटर्न आपकी 10 अगस्त को अपलोड करनी थी, वो आप अब 5 सितंबर तक कर सकते हैं जी। दूसरी बात यह है कि जो अगस्त की रिटर्न आपको 10 सितंबर तक अपलोड करनी थी,
उसको 20 सितंबर कर दिया, उसमें 10 दिन की छूट दी है। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो छूट 2 महीने या 2.5 महीने की है, ये ऐसा कोई पीरियड एक्सटेंड नहीं किया गया है। सिर्फ 25 दिन दिए हैं जुलाई की रिटर्न को एक्सटेंड करने के, और अगस्त की रिटर्न को एक्सटेंड किया है 10 दिन के लिए। सरकार ने अपने रिवेन्यू को इंश्योर करने के लिए एक नया फॉर्म 3B बता दिया है कि आप समय पे अपना डिफरेंस ऑफ टैक्स जो बनता है इनपुट और आउटपुट का, वो उसको जमा करा दें। दूसरी इशू था रजिस्ट्रेशन का, तो उनका वित्त मंत्री जी का कहना यह है कि 81 लाख में से 65 लाख लोगों ने करा लिया है, 16 लाख लोग बचे हैं जिनको करा लेना चाहिए 25 जून के बाद। और आज की डेट में जो GST नियम लागू होने जा रहा है उसमें 1 महीने का पीरियड मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में भी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से होगा। अब इसमें सवाल आता है कि 81 में से 65 लाख, तो ये मान के चलिए कि जो 16 लाख लोग वो हैं, या तो जिन्होंने कराया नहीं करा लेंगे, या जिनको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो सीलिंग थी 5 लोग की थ्रेशोल्ड की, वो बढ़ के 20 लाख हो गई है। लेकिन अब सवाल आएगा उन लोगों का रजिस्ट्रेशन का जो पहले एग्जम्प्ट थे एक्साइज में या वैट में, और जिनके ऊपर अब आज की डेट में GST लग गया है। एक सबसे बड़ी कैटेगरी इसमें आएगी कपड़ा व्यापारी की। आज की डेट में सारे हिंदुस्तान के कपड़ा व्यापारी अब इस GST में कवर हो गए हैं, उनका 5% का रेट आया है, तो उनको सबको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि फर्टिलाइज़र पे भी बहुत सारी स्टेट में टैक्स नहीं था, तो फर्टिलाइज़र वालों को भी, उनको भी सबको रजिस्ट्रेशन इसमें कराना पड़ेगा। बहुत सारी स्टेट में फूड ग्रेन, वीट और सूजी, आटा, मैदा पे टैक्स नहीं था, जैसे दिल्ली वगैरह में नहीं है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का, क्योंकि बाय एंड लार्ज बाजार में बहुत सारा आइटम ब्रांडेड बिकती है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से बिकती है। गेहूँ हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, कोई बहुत डिफरेंट नाम के नाम आते हैं। इन सबके व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये संख्या रजिस्ट्रेशन की 80 लाख से बढ़ के 1 करोड़ से ऊपर जाएगी, काफ़ी ऊपर जाएगी, जिसका प्रेशर जुलाई के महीने में काफ़ी आएगा रजिस्ट्रेशन का। साथ साथ आज की डेट में सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया में एक होता था। अब नए कानून में सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में जहां जहां आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वहां पर अलग कराना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या प्रोफेशनल्स हो, इन सब के रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे, तो वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी बढ़ेंगे। तो इन सब बातों का प्रेशर जुलाई में आएगा जरूर, लेकिन जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि चेंज तो आएगा, और आपने शुरू में भी कहा तो चेंज तो रेजिस्टेंस होती है, वो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है कि चेंज को रेजिस्ट करता है। लेकिन ये मानना चाहिए कि अगले 3 से 6 महीने में ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, और और भी अगर कठिनाई आई तो उसका पीरियड फिर बढ़ाया जा सकता है। जैसे जुलाई के महीने में रजिस्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ता नहीं हो पाता, तो सरकार ये कानून बढ़ा सकती है कि भाई जिनका जुलाई में नहीं हुआ वो अगस्त में भी करा लेंगे तो चल जाएगा। ये समय समय के साथ में लिबरलाइजेशन इसमें आएंगे। बिल्कुल 25 जून से दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और हंसमुख आडिया साहब ने यह भी कहा है कि रश करने की जरूरत नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि उसके बाद भी आप 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आशु डालमिया जी, आपको क्या लगता है, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और तमाम कॉर्नर से इस तरह की आवाज़ उठी थी कि इस डेट को डेफर किया जाए, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन 1 सितंबर तक वो कह रहे थे, लेकिन अब वित्त मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि डेट टलने वाली नहीं है, 1 जुलाई से GST लॉन्च होने जा रहा है। उसके अलावा आज कुछ अहम मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, और जो आम सहमति की उन्होंने बात कही है कि बहुत सारे मसलों पर एंटी प्रॉफिटियरिंग की बात है, उस पर भी आज काफ़ी कुछ बात हुई है। ई-वेज पर बात नहीं हो पाई है, उस पर चर्चा अगली बैठक में, और उस पर आपसे सवाल करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री से हमारे सहयोगी आलोक ने बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Most important thing is that the date of filing the return, normally having August 10, had been shifted to September. So that's a main operative part. Okay. Second, the rules were approved, all rules are now approved. Some fitment changes were made. Hotels, which is a big contentious issue, has now come down to 18% for restaurants within hotels, and also the room charges. Earlier it was 5,000, which was back 28, now it's 7,500. On the lotteries, I think we have dual model as we work out. State-sponsored lotteries at 12%,
and outsource at 28%. Sir, if you leave to textile, who are asking for... No, I don't think any change on that. Sir, but for small traders and small SMEs, is there any relief for, say, 6 months for not being election or No, the general year to extended for them to adapt to the system. As I said, the gates have operated now on 5th September and 20th September. You really understand. That is तो आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री से।